हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जशन वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के एपिसोड नंबर 3 में। इन एपिसोड नंबर 3 वी विल डिस्कस सनातन धर्म, एंड एज इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक वी विल इंक्लूड टू पार्ट्स इन दिस। इन पार्ट नंबर 1 वी विल डिस्कस what was our civilization, how ancient our civilization is scientifically, इतिहास ऑफ भारतवर्ष, क्यों हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों हमारा देश ज्ञान केंद्र माना जाता था दुनिया का, नॉलेज हब ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, एंड इन पार्ट सेकेंड वी विल डिस्कस वैदिक साइंस वर्सेस द साइंस प्रेजेंट टुडे। स्टार्टिंग पार्ट 1, इतिहास ऑफ भारतवर्ष। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो हमें पढ़ाई जाती है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है या सिंपली हम पर थोपी जाती है, दैट इज़ दैट आर्यन इन्वेडेड अस, देयर वाज अ इन्वेजन ऑन आवर लैंड ऑफ आर्यंस, which is a completely baseless theory, because whenever there is a case of invasion, there is a sort of genetic alteration or genetic mutation to some extent in that community, and our genetic lineage, our male genetic lineage dates back to 55,000 years, which is from back 55,000 years our genetic lineage is continuous and constant. There is no sign of Aryan invasion, which completely rules out this theory. And secondly, talking about haplogroups. Haplogroups, simply to be explained, are some markings on the chromosome in a genetic composition. And there is a specific haplogroup called as haplogroup F, which originated from India or Bharatvarsh, and in today's time is found in 90% of non-African males around the globe. On other hand, talking about female haplogroups, there are two kinds, haplogroup M and haplogroup N, and in today's time it is found in 100% of non-African females around the globe, which concludes that there was a mass migration which took place in the ancient times from our land. There was a sort of population explosion which in turn led to mass migration, which caused the people to migrate from our land to the rest of world and in turn forming their respective civilizations. And that is the reason that we find cultural similarities between our ancient civilization and civilizations around the globe. Now, talking about how ancient our civilization is, ये पता लगता है किसी भी सिविलाइजेशन का जो फाइंडिंग हुआ है उसके आर्कियोलॉजिकल साइट से, या फिर उसका जो ओल्डेस्ट प्रेजेंट स्क्रिप्चर है। एंड फॉर सनातन धर्म और हिंदुइज्म इट इज़ ऋग्वेदा, जो कि हमें बताया जाता है डेट्स बैक टू 4000 years. But as per a journal named Nature, there is the description of Saraswati Nadi in Rigveda as a very large, very enormous, very gigantic river, and last time it was saw was 600 BC, जो conclude करता है कि जो ऋग्वेदा है ये कम से कम 8000 years back का है। Now, talking about what were the marvels of our ancient civilization, क्या वो चीज़ें थी जिससे हम कहते हैं कि we were far ahead from the rest of world in the ancient times. We had completely well planned cities. आज हो सकता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टाउन प्लानिंग किया जाता हो, बट वो किया जाता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया का। It is very hard to find a completely well planned city.
So those were the time we had completely well planned cities. Then we had great drainage system. आज metropolitan city में drainage का काफ़ी बड़ा problem है कि how to deal with drainage. So you can compare the metropolitan city of today's India to the city of Bharatvarsh, ancient Bharatvarsh. You can compare the difference between them. Secondly, we had multi-story buildings. We had a great knowledge of metallurgy. We introduced the world with coinage system. So these were some important things to be discussed about our civilization, how we were fully modernized civilization of the times. In fact, we were the US of that time. According to a study done, in the present times, USA contributes to 20% of the whole world's GDP. And in the ancient time, Bharatvarsh contributed 55% to the world's GDP. So you can compare the difference between them. How was our ancient Bharatvarsh? और अभी 1-2 साल पहले आपने नाम सुना होगा काफ़ी सिनोली का. So what was Sinoli excavation and how it is a benchmark in India's history? It is a place near Barnawa, UP. और जो चीज़ें वहाँ से मिली, including chariot, including antenna swords, including coffins and the remainings of skeleton, ये अल्टर कर सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री को. कैसे कि जो ये चीज़ें मिली, इनका कोई कनेक्शन नहीं मिला, इनका लिंकेज कोई नहीं मिला सप्त सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और ना ही हड़प्पन एरा से इन द एशियन रीजन. बल्कि इनफैक्ट देयर द टेक्सचर फाउंड ऑन द व्हील ऑफ चैरियट was to some extent similar to that found in the Mesopotamian civilization, which could in turn unfold a new chapter of history, that there was some kind of linkage between these two civilization present. It could be a possibility that इधर से ये civilization शुरू हुई and migrate होके जब ये लोग west में गए, they led to the formation of their separate civilization. So इसलिए the Sinoli excavation is referred as to be a benchmark in India's history. Now talking about how great we were, how good we were at science, जो कि कहा जाता है कि we were far ahead of the rest of world. इसके क्या सबूत है? We had a great, our rishis, our scholars had a great knowledge of celestial mechanics, astrophysics and planetary motions, which is denoted by the war of Mahabharata. From day 1 to day 18, each great incident is described with the description of a particular star, a particular planet at a particular position on a specific time. The position of Saptarishi stars are being described, which in turn explain how great we were in the astronomy field or celestial mechanics field. And अब एक क्वेश्चन आता है कि हम जब इस एपेक्स पे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नॉलेज के, तो हम आज इस लेवल पर डिक्लाइन कैसे हुए पड़े? इसको समझने के लिए आपको एक इंस्टेंस जानना होगा बख्तियार खिलजी. आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा. व्हेन ही इन्वेजन नालंदा यूनिवर्सिटी, उसने ऋषिज़ को, स्कॉलर्स को मार दिया एंड सेट फायर टू द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उस लाइब्रेरी को जलने में महीनों लगे. तो आप इमेजिन कर सकते हैं
वो था हमारा ज्ञान विमान के बारे में, वो था हमारा ज्ञान रासायनिक ज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में, वो था हमारा ज्ञान एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, वो था हमारा ज्ञान सेलेस्टियल मैकेनिक्स पर, वो था हमारा ज्ञान मेडिसिन्स पर। एज आई सुश्रुता परफॉर्म फर्स्ट आई सर्जरी, ये ज्ञान एक नहीं बहुत अटैक्स में, जो अटैक्स किए गए मुगल्स के द्वारा, इन अटैक्स में ये इनका विनाश किया गया, जिसके कारण इवन टुडे हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर खेला जा रहा है। देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल warfare being played with us, in which we are taught that we were being ruled always, we were those who suffered। हमें ये बताया जाता है कि तुम पर राज किया गया, तुम्हें मारा गया, काटा गया। हमें हमारी प्राइड नहीं दिखाई जाती, हमें अपना ग्लोरी नहीं दिखाया जाता। वी आर नेवर टॉट हाउ ग्रेट वी वर, वी आर नेवर टॉट अबाउट चोलास। हमें मुगल्स के बारे में तो हमें ज़रूर पढ़ाया जाता है, हमें चोलास कनिष्क के बारे में, मौर्यंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि चोलास कवर्ड देयर डायनेस्टी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू फिलिपाइन। हमें ये नहीं बताया जाता चोला डायनेस्टी इज़ द ओनली डायनेस्टी विच रूल्ड फॉर 1500 years, मीन्स बिकमिंग वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी टिल द डेट। हमें हमारी ग्लोरी नहीं दिखाई जाती, जो कि आज हमें खुद रिसर्च करके हमें हमारे धर्म को जानना होगा, हमें हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को जानना होगा। इन द एंड आई वांट टू कंक्लूड द वीडियो बाय सेइंग दिस इज़ द हाई टाइम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर, द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर संस्कृति, ताकि हम वेस्टर्न सोसाइटी के पीछे मत भागें। हम समझें कि असल में कूल कौन है। एंड टुडे इवन दे आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड आवर सनातन धर्म और आवर कल्चर, चाहे वो थ्रू योग आए, चाहे वो थ्रू प्राणायाम आए, चाहे वो थ्रू मेडिटेशन आए। दे आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड बिकॉज दे आर रियलाइजिंग द एक्चुअल ट्रेजर। और हम उनके पीछे भागते भागते जो खजाना हमारा वेद पुराण में है, जो उपनिषद्स में नॉलेज है, जिसके बेसिस पर आज जितनी भी मॉडर्न साइंस ने डिस्कवरीज करी हैं, दे आर इन टर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू एनी संस्कृत श्लोका। In part 2 we will discuss Vedic science versus the science present today। कैसे जो आज के रिनोड साइंटिस्ट हैं वो आइदर थ्रू देयर इंटरव्यू और थ्रू देयर ऑटोबायोग्राफी मानते हैं, शो करते हैं देयर लिंक विद हिंदुइज्म और सनातन धर्म। इवन एक साइंटिस्ट तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में यहाँ तक लिखते हैं कि वेन एवर आई फाइंड डिफ़िकल्टी आई रीड उपनिषद्स। सो जो भी ये मॉडर्न डिस्कवरीज हुई है मॉडर्न साइंस में, हाउ दे आर लिंक्ड टू द श्लोकास ऑफ संस्कृत और हाउ द डिस्कवरर इज लिंक्ड विद द वेदास और उपनिषद्स, ये हम completely डिस्कस करेंगे इन part 2। एंड in episode number 4 we will completely discuss the Illuminati and how they play a role in the psychological warfare we discussed। कैसे वो चाहते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि हम ये जाने ना कि हमारी ग्लोरी क्या थी, हम क्या थे, हमें ये बताया जाए कि हम पर राज किया गया। इस इल्यूमिनाटी पर हम completely डिस्कस करेंगे एपिसोड नंबर 4 में। सो होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये नॉलेज पता लगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।